university in communications, communication and networks, and then I did my PhD from London and also from Geneva. It was basically the joint PhD program. So when I'm back to Pakistan, then normally people ask that, why did you come back to Pakistan when you've been outside? So I normally tell the two reasons. One, to serve Pakistan in some capacity, and also for my parents as well. So Alhamdulillah, we did it, and mashallah, we have done a couple of the projects which have a Shiva level of national and international recognition. और उसमें अगर आप देखेंगे, or if you follow us as well on LinkedIn and other media as well, so you will find that we have developed some of the unique solutions, alhamdulillah, and we have also made a remarkable achievement in that direction. आज का जो topic है, that is very unique, in which everybody is talking about the AI and also AI feature है, जिसको हम देख भी रहे हैं, ChatGPTs, LLMs have changed a lot of things around us, and the way that we live now, and the way that you used to solve the assignments, and now the way you are using ChatGPT to solve the assignments have changed a lot. But clearly we need to set some kind of the directions, and also we need to see where we are heading, और क्या क्या solutions हैं जो हमें इस वक्त आगे future में नजर आएंगे, और क्या क्या solutions हैं जो इस वक्त market के अंदर मौजूद हैं या market के अंदर evolve हो गया. If we can just pick up like AI, so you also have to specify that which domain you have been talking about. So we can take an example of the medical, we can take example of fintech, we can take an example of agriculture, which is now the most top interested area, and we can also take an example of a smart city. So all these are the major fields in which the AI has done a lot of change, and also it is bringing more and more change that we will see inshallah in the future as well. So the topic is about AI in Pakistan. So Pakistan is also one of the leading in which we are using the AI solutions, and we have seen a couple of the solutions around us as well. अगर आप आज से 10 साल पहले का अगर आप टेक्नोलॉजी का adoption देखें या टेक्नोलॉजी के यूसेज देखें, तो आपको क्लियर नजर आ रहा होगा कि इस वक्त टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन, टेक्नोलॉजी यूजर्स हमारे लोगों में एंड यूजर्स में, कॉमन यूजर्स में बहुत है, इससे पहले नहीं था. And if you are also following that R&D facilities such as medical has always been a main point. प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें. थैंक यू. Okay, so now we can start seeing as well कि हमारे पास काफी सारे ऐसे डोमेन्स हैं जहाँ पे हमें AI के इंटीग्रेशंस नजर आ रही हैं और AI के सॉल्यूशंस नजर आ रहे हैं, एंड दैट इज अ वेरी गुड साइन एज वेल. सेकेंडली, इस वक्त अगर हम देखें यूनिवर्सिटीज के हवाले से भी, तो यूनिवर्सिटीज के करिकुलम भी हैव बीन अपडेटेड एज वेल, इंडस्ट्री इज आल्सो बीन अलाइंड, एंड वी आर डेवलपिंग द सॉल्यूशंस जिनका एक्चुअली मार्केट के अंदर नीड है. तो जब तक आपको नीड नहीं पता होगा या प्रॉब्लम नहीं पता होगा, आप उसका सोल्यूशन डेवलप नहीं कर सकते. So this is very good sign as well, and because we have been like working with some industries as well here at national and the international, so we have been now very well informed and very well, you can say that, following the solution that we have to develop. So this is a very good sign, and I hope that inshallah in the future we will see more solutions in the market as well. That's the thing. सही. तो सर अगर हम जो है वो फॉर्मली स्टार्ट करें, तो सबसे पहला सवाल है, आपसे ये पूछना चाहूंगा कि भाई आजकल जो है वो आप एआई के कौन कौन से ट्रेंड्स जो है वो दुनिया में देख रहे हैं. वेयर इज एआई गोइंग इन, व्हिच डायरेक्शन इज इट गोइंग इन टुडे? Okay, that's a very good question, and we can, if we can just turn around, we can see the lot of solutions that AI has brought into the field of. You can take the fintech. Fintech has been a very good industry nowadays, and in which we are seeing that like AI solutions. So you can take an example of stock exchange. You can take an example of credit card fraud reduction. You can take an example of customer churn prediction. So these are the different problems in which the AI has been very good at providing a solutions as well. You have seen that the banks has been also very updated nowadays, and have been using the solutions which are very unique and which are very good nowadays. Second, you can see you asked that, okay, the direction that we have taken and we are taking for the future of the AI is absolutely more positive. But also we have to be very conscious that, okay, if you're bringing any AI solution, so what will be the consequences for that? You should have the compliances, you should have the regulations for any technology that you are just bringing in.
So let's say that if we have got the mobile phone, so we should know that okay, what are the regulations, what are the to be very honest, like what should be the rules and what should be the protocols that you have to follow in order to use that technology properly, firstly. And if you use that technology properly, so what are the advantages, what are the disadvantages about it? So this is very, very important thing. So we have to also educate the people that bringing the AI is a good thing, but also people has got the fear कि हमारा job खत्म हो जाएगा या हम replaced होंगे. That is for sure. It's going to happen. But you have to upgrade yourself as well. तो आपने अपने आप को टाइम के हिसाब से अपडेट करना होता है. So you cannot rely that कि you will not be replaced. Soon you will be replaced by some technique, some technology. So you have to keep on updating yourself as well. तो ये बहुत ज़्यादा fair है. Whenever I go, whenever I talk, तो लोग कहते हैं पहला क्वेश्चन मुझसे यही होता है कि like AI will replace us or not? So I said that definitely it's going to replace you. But you have to find yourself at the upgraded level. So you cannot stay at one place for the 10 years or the 15 years. And the game has been changed. So this is very important. So yes, and also if you can see, AI has brought a lot of changes, but also we can see the negative impact as well. So again, the thing is that okay, how to use, when to use, and where to use the technology matters a lot. So you have to teach or you have to educate the government people as well. सही सही ठीक है. दैट वाज अ वेरी वेल एक्सप्लेन्ड. अल्हम्दुलिल्लाह. अगला सवाल मेरा ये होगा कि भाई एज पाकिस्तानी हम लोग किस तरह से जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या कौन ऐसे लोग हैं आजकल मार्केट में जो एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एआई कम्युनिटी में फ्रॉम पाकिस्तान. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एग्जैक्टली देखिए आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इफ यू हैव द विजन ना. सो विजन आपको पहले क्लियर करना होता है कि आप जो चीज डेवलप कर रहे हैं. लेट्स सपोज इफ यू डू simple class projects, let's suppose. So you have to understand that that class project should not be like finished as soon as you get a grades. So उसका एक आपको डेप्थ पता होना चाहिए. उसका आपका एक विजन आपको होना चाहिए कि इसको 5 साल के बाद आप कहाँ देखेंगे. टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी क्लियर, लाइक कि आपके पास जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होते हैं, सो स्टूडेंट्स का नॉर्मली परसेप्शन होता है वो 1 साल का वैलिड होता है. तो 1 साल का वैलिड नहीं होता, वो आपको 10 साल के आगे के प्रोजेक्शन दे रहा होता है. So you should know that okay, whatever you are doing right now, it has got some kind of the impact. It has got some kind of the projections as well. 99.9 accuracy जो आप निकाल रहे होते हैं ना मशीन लर्निंग मॉडल्स में, एआई मॉडल्स में, उसका इम्पैक्ट होता है. तो उसका इम्पैक्ट आपको एनालाइज करना, आपको उसको देखना बहुत ज़रूरी होता है. So this is very important, and you can contribute. Anybody can contribute, provided that उसको clear objective पता हो कि किस problem के लिए वो काम कर रहे हैं, और वो problem अगर AI के थ्रू हम solve करते हैं तो वो market के अंदर आप इस तरह push कर सकते हो. So obviously none of the project is completed without the budget. So normally the student or the community don't understand that what is the role of the budget in your research or in your project as well. So you have to have your budget clearance as well कि आपके पास इतना पैसा लगना है इस प्रोजेक्ट को डेवलप करना. एंड देन व्हेन यू आर गोइंग टू पुट दैट प्रोजेक्ट इनटू द मार्केट, यू हैव टू हैव अगेन द बजट. सो फ्री में कोई काम नहीं होता. फ्री में 99.9 एक्यूरेसी मॉडल वाला भी आप प्रिपेयर नहीं करते. Why? Because you use your resources like a laptop or the GPUs as well. तो वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है. So it's not free. So you have to understand that कि okay, जो सोल्यूशन आ रहा है वो इतना वायबल है कि वो मार्केट में चलेगा, लेकिन उसके लिए बहुत फेसेस होते हैं जिससे आपको गुजरना होता है. So every project has got a business model. I strongly say to student as well कि develop a business model for your project as well. तो आप एक सिंपल क्लासिफायर बना रहे हो या आप एक सिंपल प्रेडिक्टिव मॉडल बना रहे हो, लेट्स सपोज स्टॉक मार्केट का या कैंसर डिटेक्शन का, तो उसका बजट बिजनेस मॉडल जरूर बनाना एक इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि फिर वो आपको मार्केट प्रोजेक्शंस नजर आए. बट इट इज फार अवे, लाइक जब आप प्रोडक्ट की फॉर्म में उसको डेवलप करते हो तो फिर इट्स वेरी डिफरेंट स्टोरी फॉर द ईयर. जज़ाकल्लाह सर. काफी अमेजिंग टिप्स वगैरह आपने दी हैं. स्पेशली जो आपने कहा कि क्लास प्रोजेक्ट जो है वो उनको ग्रेड्स आने के बाद रोक ना दें, तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, एक और जो चीज़ मेरे जहन में थी वो ये थी कि हमारा जो एआई का जो फ्यूचर है अगले 10 सालों में, आप क्या देखते हैं कि एआई अगले 10 साल के बाद कहाँ खड़ा हुआ होगा? वेयर डू यू सी इट? If I say that कि
AI के साथ साथ काफी सारी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, जैसे IoT का आपने कॉन्सेप्ट देखा होगा, इंटरनेट थिंग, एवरीथिंग विल बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट, दैट्स ट्रू। लाइक मेरा पानी का बॉटल भी जो है इंटरनेट से कनेक्ट होगा, मतलब इट विल बिल्कुल। हैव अ यूनिक आईपी। even the tissue box that we use will have the unique IP ना, so it will be connected to IoT का जो कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा है। तो हर चीज एक तो ऑटोमेट हो चुकी होगी और हो भी रही है काफी हद तक, और हर चीज आपको ट्रैक करना, उसको ट्रेस करना बहुत आसान होगा। सो अभी आप देखेंगे आपकी जिंदगी के अंदर कौन कैसी ऐसी चीजें जिसको आप ट्रैक नहीं कर सकते, ट्रेस नहीं कर सकते, जो कि ऑटोमेट नहीं है। सो इट विल बी इन 10 years it will be like more connected to the internet as well. So I was traveling on Shara Festival last week, so I saw one of the boat in which they have introduced now um, the oven, which is controlled by the Wi-Fi. So you see that your home kitchen appliances are going to be connected with internet. So everything in a home will be connected. So this happened in the Karachi. You can also see here. So even the tissue box, and now you can ask that if the tissue box is connected to the internet, what information it will give? It will eventually learn the pattern of the user, how frequently it is using the tissue paper. If it is using frequently tissue paper, it may be the reason that it has got the flu, and then the doctor and the medical advices can be given. So this is the thing. And the water bottle, why the water bottle is very important to be connected to the internet, because we can see that what is the water consumption. If I'm not taking the water daily, so what will be the effect on my health? So ये बहुत सारी चीजें जो हमारी ऑटोमेट होना शुरू हो जाएंगी। सो अगर हम 360 शिफ्ट करके देखें अपने इर्द गिर्द, तो हमें बहुत सारे डोमेन्स हैं जो नजर आएंगे, जो कि ऑटोमेट हो जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेशन की तरफ हम जाते हैं। राइट। तो बहुत सारे जो है वो क्रिएटिव सॉल्यूशन जो है वो अब निकल के आ रहे हैं सबके। अच्छा सर, आपने एक बात की थी कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, क्लास प्रोजेक्ट्स, इनको हम जो है वो ग्रेड आने के बाद रोक ना दें। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि उसको ओपन मार्केट के अंदर हम किस तरह लेके जाएं, क्या स्टेप्स होते हैं, क्या थॉट प्रोसेस होता है उसके पीछे, तो उसके ऊपर आप प्लीज जरा थोड़ा सा हमें गाइड करें। उसमें देखिए सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट हो जाएं, या आप ऐसे पोटेंशियल लोगों के साथ कनेक्ट हो जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी हैं, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द मार्केट एज वेल ना। सो मार्केट में इस वक्त चल क्या रहा है, या क्या सोल्यूशन है जो कि इस वक्त अडॉप्ट किए जा रहे हैं, या नेशनल इंटरनेशनल क्या रूल्स हैं जिसको फॉलो किया जा रहा है। सो until unless you don't understand and you're not connected, you cannot take your project. तो जैसे there are different platforms, जैसे आपने incubation centers देखे होंगे, इस वक्त nowadays they are taking the very good ideas and that they are providing the accelerations as well. It's a very wonderful thing to put your like idea into the product form, और ऐसे होते हुए दिख रहे हैं हम, और हमने देखा भी है। The people are really doing a wonderful job, जिसमें हम ideas को बिल्कुल एक complete product form में ट्रांसफॉर्म होते हुए देख रहे हैं। If you can just follow the incubation centers stories as well, so you will see the lot of people, और even कराची के लोग हैं, हमारे इंटीरियर सीन के लोग हैं, एंड पाकिस्तान के लोग हैं, दे आर कंट्रीब्यूटिंग वेल माशाल्लाह। और जिसमें से हमारा एग्रोटेक अगर आप देखें तो दिस इज व्हाट वी स्टार्टेड with a simple idea. It has reached a level, mashallah. And also animal passport, I must mention here, which is a simple project that we're starting sitting here discussing here, and now it has the international brand. And that animal passport has got the largest data set of the world. So we proudly say that the Pakistan has got the largest data set. Or इसके जो AI solutions है, that the team and we have developed a so-called is very unique. तो ये कंट्रीब्यूशन है जो इस वक्त हम एक विजन, लेकिन हर चीज आप एक विजन के साथ क्लियर करते हो, और अगर आपको टीम अच्छी मिले, आपको आपकी सिनर्जी अच्छी क्रिएट हो, तो फिर आप आगे लेके चलते हो। हर चीज आप मॉनेटरी बेनिफिट पे कभी भी नहीं देख रहे होते। अगर आप लॉयल हैं अपने काम से और मोटिवेटेड है, तो यू अचीव समथिंग इन अ वेरी गुड टाइम, गुड शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो नॉर्मली जब ग्रुप बनता है, यू सी दैट द पीपल आर अटैच्ड, 4 people 5 people, दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट लाइक मॉनेटरी बेनिफिट क्या है या मुझे पर आवर, तो उसमें कभी भी अचीव नहीं करते, कभी भी कोई चीज अचीव नहीं करते। तो और मेरा एक बिलीफ है कि अल्लाह ताला आपको नवाजता है अगर आपका थिंकिंग पॉजिटिव है, और आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत क्लियर है, अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं, so you will achieve that, and we have witnessed this thing in like recent year, माशाल्लाह। So agrotech का हम प्रेसिडेंट हाउस में प्रेजेंट करके रहे, हम couple of the project प्राइम मिनिस्टर हाउस में प्रेजेंट कर रहे हैं। This was what we never thought that we be there, and that we achieve, माशाल्लाह। इसी तरह एनिमल पासपोर्ट है, we got the Shark Tank funding for that as well. You can follow, I think so शायद 17 दिसंबर को आई है, 15 दिसंबर को उसकी है। So you can also follow that. So simple idea, sitting here, discussing here, and then we executed that. That's the thing.
सही। अच्छा सर, आपका जो एनिमल पासपोर्ट वाला जो प्रोजेक्ट है वो मुझे पर्सनली तो काफी पसंद है। तो अगर आप इन हमारे पार्टिसिपेंट्स को भी थोड़ा सा बता सकेंगे क्या मेन वर्किंग्स हैं उसकी, किस तरह से जो है वो आप लोग क्या आया आप लोगों के जहन में, किस तरह आपने स्टार्ट किया? एनिमल पासपोर्ट का मैं एक कोर्स पढ़ा रहा था कंप्यूटर विजन का, तो उसमें हमने एक कोर्स प्रोजेक्ट अनाउंस किया था कि सब करते हैं। तो एक आइडिया हमें डिस्कस हुआ, किसान और हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट है उमर, तो दे केम टू मी एंड देन वी स्टार्टेड डिस्कसिंग ऑन दिस आइडिया। सो हमने फिर कहा कि डेटा सेट हमें कहाँ से मिलेगा, देन वी थॉट कि पाकिस्तान कराची के अंदर डेटा सेट कलेक्ट करना है, अगर काव पे हम इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे थे। तो वो मलिर के पास एक मंडी है, तो वहां पे फिर हमने डेटा सेट कलेक्ट करना स्टार्ट किया। डेटा सेट के लिए हमने एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हायर किया था, जो 5 बजे सुबह जाता था 7 टीम पे, और फिर वो डेटा कलेक्ट करता था। एट द टाइम पीपल यूज्ड टू से दैट कि आप टिकटॉकर्स हैं, आप गाय के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। वो कह रहे हैं, हमें कहते हैं वी आर द रिसर्चर्स। Then we collected the data set, we processed that, and then when we start developing AI algorithms, we found that कि जो काव का जो मजल है उसके अंदर यूनिक पैटर्न है, जैसे अल्लाह ताला ने हमारे फिंगरप्रिंट्स में एक यूनिक पैटर्न है। And then we tested on the 10,000 cows and we got the 99.9 accuracy, which means that हर काव का अपना एक यूनिक पैटर्न है। तो इस तरह we identify कि काव को हम एक यूनिक आइडेंटिटी दे सकते हैं based on the muzzle cow muzzle pattern, just like our Natra system. So this is what we have developed. Also recently we developed like a और ये सारा कंप्यूटर विजन बेस्ड है, मतलब आप सिर्फ इमेज लोगे, कैप्चर करोगे अपने मोबाइल से, और वो सारा प्रोसेस करेगा और एल्गोरिथम के साथ मैच करके आपको बता देगा। सेकंड फीचर दैट वी हैव डेवलप्ड इन दैट इज अ टीथ, से आपका एज पता चलता है काऊ का। सो टीथ के थ्रू आप जैसे स्कैन करो और उसके काऊ का एज जो है वो आपको वो बता देगा कि क्या इसका एज है। सो एनिमल पासपोर्ट इज वेरी यूनिक इसलिए क्योंकि डेटा सेट हमारा अपना खुद का है, कराची का, पाकिस्तान से हमने खुद किया। फिर एआई सॉल्यूशंस डेवलप किए, फिर नेशनल रिकॉग्निशन, जिंदगी प्राइज हम जीत कर आए इसमें, फिर मल्टीपल नेशनल अवार्ड्स जीते, शार्क टैंक में भी गॉट द फंडिंग एंड माशाल्लाह। सो दिस इज व्हाट, और हमने बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में इसको जो है ना वो प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। So the team has been amazing. Basit है, उमैद है, हसान है, they had done a very very wonderful job. लेकिन टीम जुड़ी रही, एक टीम का एक मकसद होता है ना, तो टीम जब तक जुड़ी रहे, मिलते रहे, काम होता रहता है, अदरवाइज नहीं होता। प्रायोरिटीज, इफ यू सेट द प्रायोरिटीज सो यू विल एग्जीक्यूट, अदरवाइज यू वॉन्ट। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग, यू कैन फॉलो एनिमल पासपोर्ट। अगर आप देखेंगे तो आपको मीडिया पे भी इसके बहुत ज्यादा इंटरव्यूज और नजर आएंगे। जब हमने इसको लॉन्च किया था पिछले से पिछले बकरीद पे, सो देयर वर द 12 मीडिया आई थिंक सो जिसने इसको कवर किया था, 12 मीडिया चैनल्स at the time. So this wonderful thing. सही, जजाकल्ला सर फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस। अच्छा जी, अब आई वुड लाइक यू ऑल टू आस्क सम क्वेश्चन। क्या क्या आप लोगों के जहन में चल रहा है? कोई सवाल है खास जो आप डॉक्टर फारूक से पूछना चाहेंगे? तो you can either type them in the chat or you could open your mics and communicate directly with Dr. Farooq. किसी का कोई सवाल नहीं? अच्छा सर, मेरा एक सवाल है। तो मेरा ये सवाल है कि जैसे हम लोग हैं आजकल अभी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? तो स्टूडेंट्स जो है वो अपना एआई करियर एडवांस करने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं? सबसे मतलब जो प्रिमिटिव जो बेसिक स्टेप्स हैं जो सबसे पहले हमें करना चाहिए वो क्या होगा? I would say like इसमें आप अपना जो अंडरस्टैंडिंग है, एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ डेवलप करना है और क्या चीज़ डेवलप नहीं करना है, और उसका 10 ईयर्स का प्रोजेक्शन क्या आना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा बजट एनालिसिस आपको होना चाहिए। और तीसरा ये है कि आपको अपने प्रोजेक्ट को लाइक बिजनेस मॉडल के अंदर कन्वर्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म में करना आना चाहिए। राइट, तो उसके लिए आपको जो है ना वो किसी के साथ बैठना पड़ेगा, बिजनेस के बंदे के साथ, वो आपको बताएगा कि हाउ टू डेवलप अ बिजनेस मॉडल, राइट। इन अ वेरी नटशेल दैट कि इस प्रोडक्ट से आप कितना प्रॉफिट गेन करोगे, कितना रेवेन्यू बनाओगे, दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग। सो इसके अलावा ये है कि बेसिक फाउंडेशन बहुत हैं, आपके कुछ बेसिक कोर्स आप पढ़ भी चुके हैं और अभी कुछ एडवांस कोर्स पढ़ भी रहे हैं, तो जितना आप उसको डेप्थ को एक्सप्लोर करोगे, दैट्स अप टू यू, दैट्स रियली अप टू यू। सही, थैंक यू सो मच सर। अच्छा, हमारे पास चार्ट में दो क्वेश्चंस आए हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि हाउ रेगुलरली डू यूनिवर्सिटी करिकुलम्स अपडेट? ठीक है, एआई जो है वो काफी तेजी से एडवांस कर रहा है।
तो क्या यूनिवर्सिटीज आजकल जो है वो उससे कीप अप कर पा रही हैं? बहुत हद तक हमारा कोशिश होता है कि हम उसको अपडेट करें। इसमें हम इंडस्ट्री को फीडबैक दे रहे होते हैं और इंटरनेशनल करिकुलम को भी रिवाइज कर देख रहे होते हैं। सो नॉट every month but every semester we update that, provided that what the HEC has given us the like curriculum. दूसरा ये कि यूज केसेस या जो प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं वो काफी अलाइन करवा रहे होते हैं ताकि इंडस्ट्री की डिमांड के साथ भी हो। अब तो ये बहुत ज्यादा इकोसिस्टम डेवलप हो गया, स्पेशली इन माय क्लास एज वेल। जैसे आई एम टीचिंग द रिकमेंडेशन सिस्टम मशीन लर्निंग, तो इस वक्त मार्केट के अंदर क्या चल रहा है उससे रिलेटेड हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंकॉर्पोरेट कर रहे हो। बट इट डिपेंड्स ऑन द टीचर एंड आल्सो द कोर्स एज वेल। सही। अच्छा, इसका तो जो है वो मैं भी गवाही दे सकता हूँ, क्योंकि कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं पिछले सेमेस्टर्स में, और जब जूनियर्स वगैरह से बात होती है तो उसमें जो है वो चेंजेस हमें नजर आ रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अच्छे चेंजेस नजर आ रहे होते हैं। बहुत चेंजेस हम अ, लेकर आ रहे थे बिल्कुल। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अच्छा, एक सवाल और हमारे पास आया हुआ है चैट में। अ, जैसे एक तो डिग्री प्रोग्राम्स हो गए, राइट? डिग्री हम्म। प्रोग्राम्स के अलावा हमारे पास कौन सी ऐसी रिसोर्सेज हैं जिससे जो है वो हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और सीख सकते हैं एआई के फील्ड सबसे आसान तरीका ये है कि कोई एक्टिव रिसर्चर है आपकी यूनिवर्सिटी में, कोई एक्टिव प्रोफेसर है जो कि माशाल्लाह है, हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत प्रोफेसर माशाल्लाह, आप उनके साथ अटैच हो जाएं और उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप कोई ना कोई प्रोजेक्ट में आप इन्वॉल्व कर लें। दैट इज द बेस्ट थिंग टू लर्न, राइट? आप कुछ भी ना करें, आप कंट्रीब्यूट ना करें, आप उन, इफ दे अलाउ यू, सिट विद द ग्रुप्स, दैट्स इट। राइट, सो कोलैबोरेटिव अप्रोच में बंदा जितना सीखता है ना, वो मैंने नहीं देखा कि इंडिविजुअल सीखता है। So this is the one approach that you can do is that, और दूसरा like you can explore more things like Coursera से आप कर लें, काफी courses हैं, 5 minutes YouTube videos are available as well, so that give you the 5 minutes understanding of the entire computer vision machine learning. But I think so वो इतना ज्यादा फायदेमंद नहीं। दूसरा I strongly recommend to the student कि आपके पास हर कोर्स का, लेट्स सपोज मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, एक टेक्स्ट बुक होना चाहिए। राइट, टेक्स्ट बुक की इतनी अहमियत है ना कि आप ये देखिए स्कूलों में स्टिल टेक्स्ट बुक है, कॉलेजेस में टेक्स्ट बुक है, राइट? और हम भी जब कोर्स आउटलाइन देते हैं हम कहते हैं टेक्स्ट बुक हम फॉलो कर रहे हैं। तो टेक्स्ट बुक आपको हर अच्छे कोर्स की अपने पास होनी चाहिए जिसको आप फॉलो करें, जिससे आप फाउंडेशन अपनी डेवलप करना शुरू करें। तो टेक्स्ट बुक जरूरी है, बुक खोलना जरूरी है स्टिल इन दिस एरिया। एंड ऑल्सो आप इतने इंशाल्लाह आगे जाके काबिल होंगे, आप अपनी भी बुक लिखें। आई contributed as well as a book, so I wish you like आप खुद भी अपना बुक लिखें, बुक चैप्टर लिखें। इट्स वेरी वंडरफुल कि लोग आपके बुक चैप्टर्स पढ़ें। सही। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है वो क्वेश्चन आना शुरू हो गए हैं। तो एक क्वेश्चन और है हमारे पास, कि एआई का जो है वो मिलिट्री में या वॉरफेयर में कोई स्कोप है आपके ख्याल में? Yeah, obviously, military defense are also the major fields in which technology has been adopted. So इसमें तो कोई दूर है नहीं, right? Aviation है, aviation में जो लोग aviation का शौक रखते हैं, they can also explore AI for the aviation. I would suggest that go and check the documentary for AI for the aviation. The Singapore airport is the world first AI-enabled airport. Just one tap, just एक tap करो और आगे चलते हुए चले जाओ जहाज के गेट तक। So it's mean that वो जो सारे process सही। वाने eliminate कर दिए। Similarly, you can go and check that AI for the fashion industry. You can go and watch BBC documentary AI for the fashion industry. You will see that how the fashion industry is adopting AI. So it's very unique as well. Even I asked in the class as well, okay, can we use AI for Pakistani studies? Yes, we can use. We can use. AI has been like using everywhere. Like so, Pakistan studies, maybe we can also use इसके अलावा फैशन इंडस्ट्री है, आपका बिल्कुल। क्लीन वाटर है, एनर्जी क्राइसिस है जिसको आप लर्न कर सकते हैं इवन। सो दिस इज वेरी गुड दैट यू कैन यूज। एविएशन का सही। देख सकते हैं आप, एविएशन इंडस्ट्री अगर आप देख हम्म। सकते हैं। अभी हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिस दैट ये जो मैंने जो शर्ट पहनी है ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है क्लाइमेट के ऊपर, right? So this is one of the wonderful projects that we have been working on, which is actually saying that okay, every shirt or jeans in your wardrobe is not necessary because it is impacting the climate. So this is what we learned. We have to सही। educate that okay, two t-shirts are actually burdening the environment. Why? Because उसको बनने में पूरा एक process लगता है, वो process पूरा climate के ऊपर impact कर रहा है. So that is very dangerous. So we are bringing solutions, AI-based solutions as well. अच्छा जी। और हमारे पास जो है वो काफी सारे सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस वगैरह मौजूद हैं एआई के। तो
उसके उससे हट के हम लोग क्या एम्बेडेड सिस्टम्स वगैरह में एआई यूज कर सकते हैं? आर देयर एम्बेडेड एनी सिस्टम्स बिल्कुल बिल्कुल सॉरी। बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल कर, आपकी शायद वॉइस ड्रॉप हुआ, सो वी कैन यूज दैट अच्छा। एम्बेडेड सिस्टम। सही सही। ठीक है। और अच्छा, एक बड़े मजे का सवाल हमारे पास और आया हुआ चैट में कि अब बहुत सारे ऐसे हमारे पास सॉल्यूशंस वगैरह हैं जो कि जो नॉन कोडर्स होते हैं, जिनको कोडिंग वगैरह नहीं आती, उनको जो है वो हेल्प करते हैं कोडिंग में और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में और इस चीज में। तो क्या अभी हमें जो है वो कोडिंग सीखने की जरूरत है? देखिए, बहुत क्लियर है। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट को लेते हैं ना, तो उसके बहुत सारे फेजेस होते हैं। प्रोजेक्ट इज नॉट ऑल ओवर द कोडिंग। कोडिंग एक फेज है जिस पे आपको आना पड़ता है, राइट? बट बिफोर दैट यू हैव द प्रॉपर प्लानिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, the solution that you are going to achieve, and उस solution से जो आउटकम आना है उसको आपने परसीव करना होता है, and also the budgeting में business model, तो बहुत सारे phases, the coding is a part of the project as well. So अगर आप कोडिंग में वीक हैं या कोडिंग आपको अच्छी नहीं लगती, so still bypass and you can develop the solution. I mentioned earlier that the collaborative approach यही होती है। collaborative approach क्या होता है? None of the work is being done by single entity, so right, so it's a part of that. तो हमें हमारे यहाँ ये फेल भी होता है, या ये होता है कि we put ourselves in a wrong chair, right? कि यार मुझे मैं फिट नहीं हो रहा, लेकिन मुझे वहां पे फिट होना है। सो इस तरह हमें ना अपने आप को हम बहुत कम जांचते हैं, हम दूसरों की राय को अपने ऊपर इम्पोज करते हैं, जिसकी वजह से हम अपने आप को खो देते हैं। So I suggest a student that you have to see yourself where you are actually comfortable now. So if you are comfortable with the coding, it's fine. If not, then nobody is just putting the hammer on your hand that you have to learn the coding. Yes, you should know that how to code. You should interpret the code, but excelling the code is very different than that. So don't burdenize yourself. So इसकी वजह से काफी students stress out भी होते हैं बहुत ज़्यादा. So don't do this. सही। अच्छा, एक और सवाल हमारे पार्टिसिपेंट्स की तरफ से आया है, वो ये है कि कोई फ्री एआई टूल्स वगैरह हैं? क्योंकि हम लोग आजकल कोई भी एआई टूल खोलें तो वो इट टर्न्स आउट टू बी पेड। तो Hmm. आपके नज़र में कोई ऐसे टूल्स वगैरह हैं जो कि हम जो है वो फ्री में यूज कर सकते हैं? ओके, देखो डिपेंड करता है कि आप किसके लिए यूज करना चाह रहे हैं ना। कुछ ऐसे हैं जो कि फ्री सब्सक्रिप्शन या फ्री आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नन ऑफ द थिंग बिल्कुल। कम्स विद फ्री विदाउट मनी ना। सो यू हैव टू स्पेंड समथिंग। तो आपको इतनी ज्यादा आई सही। डोंट थिंक जो अपने हाई लेवल प्रोजेक्ट करें जिसमें आपको पेड सर्विसेज करें, अनलेस यू हैव टू एनहांस योर पिक्चर एंड ऑल दैट ना। तो हमें हम्म। भी, जैसे अगर मैं अभी आपको बताऊं कि हम लोग जो प्रोजेक्ट्स कर रहे थे उसके अंदर भी हमें कुछ ऐसे सर्विसेज जो हमें लेनी पड़ती हैं, राइट? पेड सर्विसेज, अदरवाइज यू कैन सही गो सही। विदाउट दैट। तो इतना ज्यादा मसला नहीं होता। राइट। सही। अच्छा, और सर मुझे बताएं कि जैसे आजकल जो है वो एआई की फील्ड में क्या क्या आपको गैप्स नजर आते हैं लोगों की पर्सनालिटीज में या स्किल लेवल्स में? क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसमें लोग लैक करते हैं और जो है वो उनको पता नहीं है कि वो लोग लैक कर रहे हैं, और उसकी वजह से उनकी जो प्रोग्रेस है वो हिंडर हो रही है? Actually, I think so. We have lost kind of the self-proving ना। self-proving like कि हमें नहीं पता होता कि हमें क्या चीज़ सही क्या चीज़ नहीं चाहिए। जरूरी नहीं कि सामने वाले को अगर वो चीज़ अच्छी है या उसने वो चीज़ अडॉप्ट की तो मैं भी वो अडॉप्ट करूँ। सेल्फ ट्रेनिंग इज लैकिंग एक्चुअली। दूसरा ये करना क्या है, क्यों करना है, किस तरह करना है, क्लियर नहीं है जनरेशन में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ना। सो व्हाई यू आर डूइंग ना, एवरीबॉडी इज डूइंग ना। So but why are you doing so? No, I don't know. So this is a very dangerous thing. So you have to be clear यार कि मेरे ऑब्जेक्टिव है, मैं सुबह उठाऊँ मुझे कुछ अचीव करना है, जब मैं रात में सोऊंगा तो मैं कुछ अचीव करके सोऊंगा। Every single moment you are contributing, either positive or negative. So you are just using the Snapchat or something, sorry, so it doesn't count anything. So you have to do something which can contribute. आपकी लाइफ एक तो इम्प्रूव हो, दूसरा आपकी वजह से दूसरे की लाइफ भी इम्प्रूव हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप दूसरे को कितना रिलैक्स मोड में लेके जाते हैं और उसको पॉजिटिव लेकर आते हैं ताकि वो कंट्रीब्यूट करे सोसाइटी के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारी जिम्मेदारी है हर लेवल के ऊपर। तो अच्छा, दूसरा ये कि लोगों को पता नहीं होता हमारे यहाँ। मसला ये होता है कि हमें नहीं पता होता कि हमें किस डोमेन में काम करना है। हम समझते हैं कि वो कोई चीज़ कोई बंदा आगे करेगा, कोई फ्लाई मखलूक हम्म। करेगा। ऐसा नहीं, हमें करना, हमें ये सोल्यूशन डेवलप करना है, हमें ही लोगों को टीच करना है, हमें ही लोगों को बताना है कि किस तरह हम आगे आगे लेके चलेंगे। वी आर कनेक्टेड टुडे इन ऑर्डर टू हैव सम पॉजिटिव वाइब्स, दिस इज द थिंग, एंड वी हैव टू बी वेरी पॉजिटिव। आई नो दैट देयर आर डिप्रेशन, देयर द फ्रस्ट्रेशन, बट किसी को तो पॉजिटिव होना है ना, किसी को तो एक क्या कहते हैं पॉजिटिव वे में आगे लेके चलना है सबको। सो दिस इज व्हाट, सो यू कैन बी अ बेacon ऑफ लाइट
ताकि लोग आपको देख के मोटिवेट हो, आपको देख के बिल्कुल खुशी महसूस करें। आई थिंक सो डिप्रेशन ना, आई वुड से दैट कि यार कि कहेंगे यार ठीक है, ही इज डूइंग वेरी गुड एंड मैं जो इसके साथ काम करना है। तो आई थिंक सो यू शुड बी दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी रादर देन डिप्रेस्ड कॉफी के आप कप पिए जाएं और फिर भी कुछ ना हो तो इट्स यूजलेस। बिल्कुल सही है। बहुत ठीक है। सारे अच्छा सॉल्यूशंस हैं सर। वी कैन डेवलप, बहुत बिल्कुल सॉल्यूशंस हैं। बिल्कुल सही। अच्छा एक सवाल और देते हैं कि जो लोग एआई में डिग्री परस्यू कर रहे हैं या किसी भी जो है वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड डिग्री परस्यू कर रहे हैं और एआई में काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए डिग्री के दौरान क्या क्या चेक पॉइंट्स होंगे? फॉर एग्जांपल वो लेट्स से 3 सेमेस्टर्स बाद क्या अचीव करने के काबिल होंगे या 6 सेमेस्टर्स के बाद क्या अचीव करने के काबिल होंगे? तो इस तरह की कोई सेट रोड मैप होता है? जो डिग्री पूरा प्लान हुआ हुआ है, अगर आप देखें आपके उसमें करिकुलम में, तो हमने ये चेक पॉइंट्स दिए हुए होते हैं या थर्ड ईयर के बाद, सेकंड ईयर के बाद। लेकिन देखो आजकल आई ऑलवेज से टू माय स्टूडेंट एज वेल, दिस इज अ एरा ऑफ, या दिस इज द टाइम ऑफ द प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव मतलब यू हैव टू परसीव बैठ के यार 5 महीने बाद क्या चीज़ आने वाली है, या 5 महीने बाद मुझे किस चीज़ की, यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। सो जितने एफ आई पी जो कामयाब होते हैं ना, वो प्रोएक्टिव डोमेन में हो रहे होते हैं, बिकॉज नाउ दैट एफ आई पी विल बी स्टार्टेड दिस ईयर फ्रॉम अगस्त। पर सारे प्रोएक्टिव स्टूडेंट्स के ग्रुप जो हम इस वक्त हंट कर चुके हैं, सुपरवाइजर्स को इस वक्त हंट कर चुके हैं अपने टॉपिक्स को। दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोएक्टिव मोड। सो एवरीबॉडी शुड बी, बिल्कुल स्टूडेंट स्पेशली शुड बी इन अ प्रोएक्टिव मोड कि आपको क्या चीज़ चाहिए और क्या चीज़ आपने अचीव कर लिया। दिस इज ऑल, सो दिस इज सेल्फ असेसमेंट एज वेल, आप उसको भी कर सकते हो। तो वैसे चेक पॉइंट्स हैं हमारे पास, एंड वी आर डूइंग दैट, दैट्स नॉट एन इशू। सही। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। और किसी का कोई अगर सवाल है तो प्लीज डू फील फ्री टू आस्क। वी हैव 15 मिनट्स टिल द टाइम एंड्स, तो अगर किसी का सवाल है तो गो अहेड, वरना सर अगर आप इसके अलावा और कोई इंसाइटफुल टिप्स वगैरह शेयर करना चाहें तो वीड बी हैप्पी टू लिसन। बहुत सारी हैं, बस ये है कि एवरीबॉडी शुड बी मोटिवेटेड एंड नो दैट कि किस डायरेक्शन में जाना है, और गेट द राइट एडवाइस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड गेट अटैच विद द राइट मेंटर एज वेल, एंड डोंट गेट कंफ्यूज्ड बाय द टू मेनी ओपिनियंस अराउंड यू, लाइक वो आपको कंफ्यूजन स्टेट में डाल देती हैं कि क्या करना क्या नहीं करना। somebody says that okay you have to learn the generative AI, somebody says that okay now it is already available in the form of the chat GPT, so not that. So you have to बिल्कुल decide and बिल्कुल। take one mentor advice, I would say, and just proceed in your life. And also, if you have got parents alive, so take their duas. Also, respect your हम्म। elders, respect your senior citizens as well. बुजुर्गों का ही respect करें, especially. Uh, छोटों का ख्याल रखना obviously, and you should learn your self responsibilities as well, जो घर की आपकी हैं. That is very important. So this is my message to everybody जिसको हम जिससे हम बात करते हैं, जिससे हम मिलते हैं, जिसको, this is the thing, and we will hope to see the positive impact in our society as well, inshallah, inshallah. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। You can post me the questions if somebody has got, so बाद में भी हम उसको आंसर कर सकते हैं, that's not an issue. बिल्कुल बिल्कुल, So हमारा ग्रुप इंशाल्लाह एक्टिव रहेगा, व्हाट्सएप ग्रुप जो हमने बनाया है, तो उसके ऊपर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो, कोई किसी चीज़ में हेल्प चाहिए हो, तो यू गाइस जस्ट फील फ्री टू मैसेज ओवर देयर। ठीक है। अ, अच्छा एक सवाल और आया है कि एग्रीकल्चर वगैरह में एआई कितना प्रोडक्टिव है? बहुत ज़्यादा है, because if you see that agriculture domain is a very vast domain, उसमें आपको बहुत डेप्थ मिलता है जिसमें आप solutions को लेकर आ सकते हैं। मतलब वे आर द 10 एप्स जिस पे हम इस पर काम भी कर रहे हैं, और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जिसमें अगर आप ऑटोमेट करते हैं चीज़ों को, तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम से निकल आते हैं, या बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर लेते हैं। बिल्कुल सो आपका जब भी विजिट हो इंटीरियर पे, या जब भी आप खेतों से गुजरें, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है जो कि एक किसान फेस कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है एक जो जमींदार फेस कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है जो कि गवर्नमेंट फेस कर रही है, राइट। सो दिस इज व्हाट द एआई कैन ब्रिंग द सॉल्यूशन। एआई जब हम कह रहे होते तो उसका मतलब है कि हम फुल ऑटोमेशन की भी बात करें, हम जनरेटिव एआई की भी बात करें, हम कंप्यूटर विजन की भी बात करें। तो और हम इस वक्त हम लोग एक्टिवली जो एक काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो ये है कि एग्रीकल्चर क्लाइमेट पे कितना इम्पैक्ट है, और क्या हम टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए उस इम्पैक्ट को हम कम कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। सो यस वी कैन डू दैट, दिस इज व्हाट वी आर आल्सो सेइंग, डूइंग दैट। एग्रीकल्चर लैंड पे जो जानवर होते हैं
मवेशी सही। जिसको हम कहते हैं, वो मवेशी का जो पैटर्न होता है ना एग्रीकल्चर की लैंड के ऊपर, जमीन के ऊपर, वो भी इतना वर्ष इम्पैक्ट लेकर आ रहा था किसके ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर। तो क्लाइमेट क्या है कि अगर बिल्कुल। क्लाइमेट को आप डिस्टर्ब करोगे, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस अगर आपके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, यू विल सी द कॉन्सिक्वेंसेस। टू मच एक्सेसिव हीट लास्ट सही। ईयर in Karachi, and we are expecting more this year because सर्दी तो चली गई है, और अब now we can anticipate। इसके अलावा आपके पास फ्लडिंग है और डिफोरेस्टेशन है, फिर आपके पास एविएशन इंडस्ट्री जो इस वक्त हिट हुई है उससे टर्बुलेंस है। इफ यू नो दैट जो recent turbulence एक्सीडेंट्स हैं, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। सो क्लाइमेट आपको डिस्टर्ब हो क्योंकि आपकी जो ह्यूमन एक्टिविटीज है वो वर्स होती है। तो एग्रीकल्चर में हम लोग बहुत बहुत मतलब इट्स अ वेरी अलग सेपरेटेड टॉपिक इन व्हिच वी कैन हैव अ टॉक ऑन इंशाल्लाह। सही। सही। इंशाल्लाह बिल्कुल इसको हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा, Okay. और एक सवाल ये है कि what is the best way to approach someone in the AI industry to live up to as a mentor? I think जो आप पूछना चाह रही हैं वो ये है कि क्या क्या क्वालिटीज हम देखें मेंटोर सेलेक्ट करते हुए, इज दैट राइट? आई थिंक सो मेंटोर हैज बीन अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, और अगर वो आप खुद नहीं सेलेक्ट करते हो, आपके साथ खुद ब खुद आपको मिलता है। सो इट्स नॉट लाइक समथिंग यू हैव टू बाय और यू हैव टू सेलेक्ट फ्रॉम द मार्केट ना। तो आप देखें यहाँ पे सही। एडिट में कौन से ऐसे लोग हैं, इफ यू हैव समवन सो यू कैन जस्ट अटैच विद देम, क्योंकि आज के फ्री में एडवाइस कोई नहीं देता और फ्री में टाइम भी कोई नहीं देता, सो दैट्स एन इशू। सो इफ यू हैव गॉट द लॉयल पर्सन जो कि आपको 10 मिनट बिठा के कुछ चीज़ समझा देना, तो ये भी बड़ी नेमत है आजकल के ज़माने में। बिल्कुल। राइट, अगर बिल्कुल कोई ऐसा प्रोजेक्ट होता है। समझा दे या आपको रिसर्च पेपर लिखना सिखा दे। आई रिमेंबर वन ऑफ माय टीचर डॉक्टर तारिक, ही इज प्रोफेसर एट किंग अब्दुल अजीज जद्दा, एंड बैक इन बिल्कुल। 2013 उन्होंने मुझे पूरा रिसर्च पेपर लिखना सिखाया था उस टाइम पे, 2013 ओके। के अंदर। और एंड आई वाज लाइक कोई इतना सिंसियर हो सकता है या नहीं। सो देन आई रियलाइज जो लोग मुझे मिले, सो आई ट्रीट माय स्टूडेंट्स एज वेल, कि सिखाओ चीज़ों को, कहीं ना कहीं उसकी लाइफ पे इम्पैक्ट बिल्कुल। लेकर आता है, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर चीज़ ना आप पर्सनलाइज हो, पर्सनल लाइफ इंसान की होती है, लेकिन अगर आप पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा साइड में रख के लोगों को फैसिलिटेट करना शुरू करेगा, यू विल अचीव समथिंग। अच्छा, एक सवाल सर मैं चैट में पोस्ट कर रहा हूँ। दिस इज अ बिट ऑफ अ डिटेल्ड क्वेश्चन, तो आई वुड लाइक यू टू रीड इट एज वेल। ये हमारे एक पार्टिसिपेंट की तरफ से ही आया है। इसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा सबसे पहले, इफ यू डोंट हैव एनी प्योर फॉर्मल एजुकेशन फॉर दैट ना। सो आई थिंक जो वी हैव इन 6 सेमेस्टर 4 सेमेस्टर ऑफ एआई, लाइक एआई का एक पूरा है, उसका करिकुलम आप फॉलो कर सकते हो। टॉक अबाउट द बिल्कुल। एजेंट्स एंड ऑल दैट, उसके चैप्टर वो बुक है, रूजल की बुक है, उसके चैप्टर नंबर 2 आप फॉलो कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 1 फॉलो कर सकते हैं। इट विल गिव यू द मोर इनसाइट एज वेल। वहाँ से आप स्टार्ट ले ओके। सकते हैं, अगर और बिल्कुल ब्रूजर की बुक अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो वो इट्स अ बिट, आई थिंक जो 18 चैप्टर नहीं 17 चैप्टर है उसमें, उसके शुरू के 3 चैप्टर पढ़ ले, आपको चीजें समझ आ जाएंगी। सही। अच्छा सर, अगर आप उस बुक का नाम और ऑथर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर पाएं तो दैट वुड बी अ ग्रेट हेल्प। मैं उसका वो बिल्कुल साइट शेयर करती हूँ, नाम तो मैंने बता दिया, RUSSEL रोजल है उसका जो ऑथर है। उसका मैं पूरा नाम जो है सही। ना, AI, आई थिंक सो AI इन कन्वेंशनल AI से कुछ है। सो आई विल जस्ट पोस्ट दैट सही। इन द बुक्स ठीक है। एज वेल बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल श्योर। आफ्टरवर्ड्स। अच्छा, Baki और everybody is सर। connected हाँ। through WhatsApp, right? So they can ask any एग्जैक्टली। question. एग्जैक्टली। बिल्कुल। This stuff. बिल्कुल ऐसे ही है। और ये है कि सर जो आजकल एप टेक या अरीना मल्टीमीडिया टाइप जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें जो शॉर्ट कोर्सेज हो रहे हैं एआई के, क्या आर दे वर्थ इट? क्या उनकी कोई जो है वो वर्थ है? बट है एग्जैक्टली, जब भी तो ऑफर हो रहे हैं लोगों को, फैसिलिटेशन हो रहा है। जैसे फिर रिमेंबर नेटवर्किंग के कोर्सेज होते थे या कुछ डिफरेंट कोर्सेज होते थे, रिमेंबर पैक, तो वर्थ तो होता है, मतलब कोई ना कोई हम्म। फैसिलिटी आपको मिल ही जाता है। और लेकिन ये कि अगेन द टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट दैट यू आर जस्ट डूइंग ना, वो मैटर करता है लॉट, और फिर आप किस ग्रुप के साथ अटैच हैं, दैट मैटर्स लॉट। कौन से रिसर्च के साथ आप किसी रिसर्च ग्रुप के साथ अटैच हैं, तो दैट मैटर्स लॉट। हम्म। तो ये चीज़ है, बाकी कोर्सेज करने में कोई वो नहीं है, अच्छे कोर्सेज हैं, सब लोग अच्छा करवा रहे हैं, curriculum is up to date, generative AI, I've seen like a couple of the projects as a courses curriculum as well, so it's wonderful। आप कितना सीख रहे हैं, that matters a lot। सही। और उसके अलावा सर मेरे ख्याल से ये भी है कि जो शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, दे आर गुड टू ले डाउन द फाउंडेशन। मतलब आपको एक समझे, ये नजर आया था कि भाई मैंने इस डायरेक्शन में पहला कदम किस जगह रखना है। उसके बाद हम्म। जो है वो बाकी रिसर्च पूरी जो है वो आपने खुद करनी होती है।
R&D के लिए ना देखें, अगर आप, मैं बात करूँ ना कंप्यूटर विजन की, देखें अगर आप कंप्यूटर विजन आपको अच्छा लगता है, विजन के साथ काम करें, आप फॉलो करें टॉप रिसर्च as well। CBPR इज अ टॉप कॉन्फ्रेंस इन द वर्ल्ड, हर साल बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन आता है, उसको फॉलो कर लें। MSCLI मशीन लर्निंग की कॉन्फ्रेंस है, यूजुप को सिग्नल प्रोसेसिंग की कॉन्फ्रेंस है, टॉप कंट्रीब्यूशन आ रही है, तो बिल्कुल। आपको रिसर्च एक ट्रेंड हम्म। पता चल रहा था कि लोगों की कंट्रीब्यूशन क्या है। फिर आप फाउंडेशन लेवल का कोर्स करते हैं, आपको पता चलता है आप किधर कितने गैप पे खड़े हैं। तो इट्स टू वे डायरेक्शन आपने चलना पड़ता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतनी चीज तेजी से चीजें चेंज हो रही है ना, तो अगर आप सिर्फ एक प्रेडिक्टर मॉडल के ऊपर रिलाई करेंगे, यू विल नॉट अचीव समथिंग, या सिंपल क्लासिफाई करते हैं, यू हैव टू क्लियर द फॉर्मेशन एंड बेसिक नॉलेज एज बिल्कुल। वेल। ठीक है। और एक सवाल और है कि इज एआई अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू स्टडी? नहीं, अगर इतना डिफिकल्ट होता तो हम रूड हो चुके थे अभी तक, we would have been बिल्कुल ऐसे very ही है। rude and some things, ऐसा नहीं है कि yeah, it's not that much, it depends on the interest, it एग्जैक्टली, depends on बिल्कुल ऐसे ही है। डिपेंड्स ऑन योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। अगर मैं अपना depends। एक्सपीरियंस भी शेयर करूँ पर्सनली, तो हम्म। उसमें ये है कि मुझे एआई के बारे में कुछ भी नहीं पता था। आई वाज अ लेमैन। ठीक है। और जब मैं जो है वो जब मैंने थोड़ी सी रिसर्च वगैरह करनी शुरू की, रोबोट्स वगैरह से मुझे लगाव था थोड़ा बहुत, तो उसमें मैंने जब मैं उसके अंदर जब मैं समंदर में बेसिकली मैंने डाइव मारी, तब जाके मुझे अंदाजा हुआ कि जो है वो ये कितनी एक मजे की फील्ड है। और मैं भी बहुत मुश्किल समझता था इसको, बट ये है कि इट टर्न आउट टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी टॉपिक, अल्हम्दुलिल्लाह। Because we have been working on one project which actually use AI for the food. ओके। How much food is fresh or not fresh is like, इसका भी डेटा सेट हमारा बहुत अच्छा वो एक प्रोजेक्ट है, इसका डेटा सेट भी हमारा अपना है, like fresh meat quality that we have been working on. So like सही। you can think of, you can apply like, एक ऑटो ऑडिटर है, ऑटो ऑडिटर भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है हमारा, और ये एनआईसी में इंक्यूबेटेड भी है। इसमें हम जैसे जितने कंप्लाइंस है ना, जितने ऑडिट के प्रोसेस होते हैं उसको पूरा ऑटोमेट कर रहे हैं हम्म। यूजिंग द एआई। सही। दूसरा एक प्रोजेक्ट सही। है फिन विजन, ये एनआईसी पेशावर में इंक्यूबेटेड है, और इसमें हम बैंकिंग से रिलेटेड सॉल्यूशंस डेवलप कर रहे हैं एआई के। और एक एग्रोटेक एनआईसी हैदराबाद में इंक्यूबेटेड है, क्लाइमेट डॉट आईओ, ये हैदराबाद इंक्यूबेटेड है एनआईसी में, इसमें हम क्लाइमेट से रिलेटेड। तो दिस ईयर माशाल्लाह वी हैव गॉट 5 प्रोजेक्ट्स इंक्यूबेटेड इन एनआईसीज across Pakistan, from Hyderabad to Peshawar. Idea माशाल्लाह। to like this one. So this is what we have been doing. I know that it's been very tired, but have to put a lot of efforts in this in order to achieve. बिल्कुल। So hoping अच्छा। that we will bring some change in the इंशाल्लाह society. इंशाल्लाह सर। लास्ट क्वेश्चन बस हम लोग लेते हैं इंशाल्लाह। वो ये है कि व्हाट आर द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स टू क्रिएट एआई एजेंट्स फॉर नॉन कोडर्स? You can explore, like it depends कि आपका अपना knowledge क्या है, domain आपका क्या है, and then you can explore by yourself. Like I would not recommend any explicit platform, but you can check that what goals that you have to develop the agents, right? So there's no explicit platform. सही। जज़ाकल्लाह एवरीवन। इट हैड दिस बिन इट हैड बीन अ वेरी हेल्दी डिस्कशन अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे तो बहुत मजा आया, एंड आई होप कि आप सबको भी बड़ा मजा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जज़ाकल्लाह डॉक्टर फारूक फॉर योर टाइम। आई एम अवेयर कि आप कितना बिजी चल रहे होते हैं, और उसमें से टाइम निकालना, तो इट इज ट्रूली एन ऑनर। ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। Inshallah, thank you everyone. Thank you, Ayan, for inviting and also holding this session. Thank you everyone for listening me and bearing नॉट एट me ऑल सर। for 1 hour. Inshallah, we will get connected. Inshallah. इंशाल्लाह सर। जज़ाकल्लाह एवरीवन। हम लोग यहाँ पे इसको एंड करते हैं, और इंशाल्लाह आई होप वी स्टे कनेक्टेड थ्रू द व्हाट्सएप ग्रुप दैट वी हैव मेड टुडे, और होप टू कम्युनिकेट विद यू ऑल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज फ्रॉम माय साइड।